the Abrahamic religions and the Dharmic religions. Abrahamic religions have three, although many other broad categories. जैसे Baha'ism, जो अपना लोटस टेम्पल है, इट इज़ अ बहाई टेम्पल, बहाई मंदिर कहा जाता है उसको. सो बहाई धर्म है, सो उनका वो टेम्पल है, लोटस टेम्पल. सो देयर आर सेवरल अदर सेक्ट्स, Zoroastrians etc. in Abrahamic religions की offshoots हैं, but there are three major categories: the Christianity, Islam and Judaism. Coming to Dharmic religions, they are also divided into several categories, of which four are major: the Hinduism, Sikhism, Jainism and Buddhism. In सारे religions में there is a talk of dharma या dhamma. Like in Buddhism they don't say dharma, they say dhamma. उसके बाद अगर मैं broadly Hinduism की बात करूं, so it is also divided into 6 major schools जिन्हें कहा जाता है षड दर्शन, based on their interpretation of Vedas. So they are divided into 6 schools. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there is न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, and Vedanta is called उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग और वेदांत. Vedanta is also known as उत्तर मीमांसा, and this मीमांसा is known as पूर्व मीमांसा. Out of these 4 are atheistic, from न्याय to सांख्य. Yoga talks about परमात्मा, क्योंकि ध्यान किस पर कर रहे हैं योगी? परमात्मा. आपको दिख रहा है ब्रो? You can see it. So there is talk of परमात्मा in योग, और फिर वेदांता is theistic. Again, we are interested in Vedanta Darshan. Vedanta Darshan is divided into 2 major schools. There is Advaita Vedanta and Vaishnava Vedanta. Now, Vaishnava Vedanta is also divided into several categories, but there are 4 major categories of division, which are the 4 Vaishnava Sampradayas. So there is, starting with, let's start with Nimbarka. Actually, philosophy के नाम से लिखते हैं, then follow founders आचार्यों के नाम. There is Vishisht Advaita. Vishisht Advaita is called specific non-dualism. Specific non-dualism. And it is propounded by Ramanujacharya. Then comes Dvaita, which is called dualism. Then comes Shuddha Dvaita, which means purified non-dualism. And Dvaita, which means dualistic non-dualism. जैसे इंग्लिश नाम याद करने की जरूरत नहीं है, और कहीं कहीं पर आपको ये नाम अलग अलग भी मिलेंगे. So this is done by Western philosophers, तो इसलिए उसमें कोई coherency नहीं है. Then of course Vishishtadvait is propounded by Shripad Ramanuja. इसे इसलिए रामानुज संप्रदाय कहा जाता है. Then Sri Madhava, not Madhava, Madhvacharya, not Madhavacharya. Madhavacharya is another acharya. Shuddhadvait is by Sri Vishnu Swami. This is Rudra Sampradaya. There is Sri Sampradaya, Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya and Kumar Sampradaya. And Dvaita Dvait के हैं Sri
निम्बार्काचार्य. Then in Dvait Sampradaya, we are interested. In this Dvait Sampradaya came Sri Madhavendra Puri. And Madhavendra Puri की लाइन में आए श्री चैतन्य महाप्रभु. And then after Sri Chaitanya Mahaprabhu, there are different schools. अगर आप चैतन्य चरितामृत आदि लीला पढ़ते हैं तो उसमें महाप्रभु के 24 सेक्ट्स में, मतलब महाप्रभु रूपी वृक्ष के there are 24 branches. और अब तो और बन गई है. So but we are interested in Rupanuga Sampradaya. In the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we are in Rupanuga school. Following, आप इधर आ सकते हैं, no problem. You can sit there at the back. It might not be visible. मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा because I see all of you are old, so you have some idea what we are discussing. And then Rupanuga Sampradaya, we are interested in Rupanuga Sampradaya, मतलब followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu headed by Sri Rupa Goswami. That's our interest for now. And in Rupanuga Parivar also there is Narottam Parivar. Among the followers of Rupanuga, Srila Rupa Goswami, there is Narottam Parivar. And that Narottam Parivar appeared Srila Bhakti Vinod Thakur. So we are in Bhakti Vinod Dhara, and then Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and then Srila Prabhupada, and then our Acharyas, जो हमारे गुरु हैं या होंगे. So this is the rough sketch of religious map of the world. We are here. मतलब here का मतलब नहीं कि हम नीचे हैं, हम नीचे नहीं है, but we are here. And यहाँ से खड़े होकर मुझे इन सारे religions को समझना है, to understand the importance of the family that we are coming in, starting from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Clear है सबको? Okay. Shall I erase it now? Now coming to the comparative study of Abrahamic religions and धार्मिक religions. हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो सिर्फ हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी फिर फ्यूचर में समटाइम्स विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अवतार एंड द कंसेप्ट ऑफ सिन. ठीक है, only 2 points we'll discuss, and we'll see how dharmic religions and Abrahamic religions, specifically how Abrahamic religions and Krishna consciousness views at these 2 points differently. क्या different perspectives हैं. तो first of all, the concept of avatar. Avatar comes from the word, what is the root word? Avatarana. Avatarana. Avatarana means to descend, yeah, to come down. But come down from where? Come down from where? That is what we will be discussing. What is the English translation for avatar? Incarnation. This is a wrong translation. This is wrong. और क्यों wrong है इसको हम समझते हैं पहले. So there are 2 planes of existence. There is this spiritual plane of existence. ठीक है, लिखने का टाइम तो मिल जाएगा बाद में, मैं दे दूंगा, अभी समझते हैं पहले. Spiritual plane of existence and material plane of existence. ये spiritual world, ये material world. हम कहाँ हैं? Material world पे. और भगवान कहाँ हैं? Spiritual world. Everyone accepts it, whatever religion be it. So God has to be at a higher plane of existence to be God. ठीक है. तो अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार means to descend, to come down. So the point of avatar is that God, who exists on spiritual plane of existence, he descends from spiritual plane of existence to material plane of existence. He stays on this material plane of existence for some time and then goes back. This is the concept of avatar in Sanatana Dharma. That God, who is on the spiritual plane of existence, descends from spiritual to material plane, stays for some time on material plane and then goes back to the spiritual plane. जितनी देर भगवान material plane पर exist करते हैं, he does 2 things. वो लीला करते हैं और वो शिक्षा देते हैं. लीला is for mind, to engage our mind. Krishna, the avatar engages in लीला, and शिक्षा is for intelligence.
engage our intelligence. Now, what is the fundamental difference between how this is viewed by Abrahamic and Dharmic religions? Yeah, Abrahamic religions and Krishna consciousness. When we say God descends from spiritual plane to material plane, then Abrahamic religion says God will, if that happens, if it never happens as per them, but if this happens, then God will lose his divine nature by coming in contact with material plane of existence. Okay. But that is denied by Krishna, refuted by Krishna. भगवान क्या कहते हैं? मम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम ऐश्वरम. So Krishna says अवजानन्ति माम मूढ़ा. These people are fools. क्यों? मानुषिम तनुमाश्रितम. When I descend from spiritual plane of existence to material plane of existence, they think I have accepted a human body. Manushim tanum ashritam. I have accepted a material body. But they don't know param bhava majananto. They don't know my supreme nature, which is mama bhuta maheshwaram. That I am the master of this material world. So क्या है? This is Maya. और माया के jurisdiction में कौन है? जीवा. But माया किसके jurisdiction में है? ब्रह्मन के या भगवान के. So is Brahman within the jurisdiction of Maya? No. If Brahman also comes under the jurisdiction of Maya, then he is no more Brahman. So for Brahman to be Brahman, he has to lead Maya. इसलिए Mama Maya. So Brahman, so Jiva, it is within the three modes of material nature, and it suffers its karmic reaction based on the mode of material nature that it is in. But Maya is under the jurisdiction of Brahman, and Brahman cannot be affected by the changes caused by Maya. चमक रहा है? थोड़ा बहुत. इसीलिए अगर ब्रह्म माया के जगत में आते हैं तो भी पद्मपत्र इवाम्बसा, जिस प्रकार से a lotus leaf is in water but still untouched by water. Similarly, the Brahman may look like he is within the jurisdiction of Maya, he is in the world of Maya, but still by his very nature he is untouched by Maya. And very simply one can understand it. For example, a prime minister goes to jail. Now, अगर नॉर्मल कैदी उनको देखकर बोले because he is in jail, Srila Prabhupada gives this example, because he is in jail, he is also a prisoner like us, he may also have committed a crime like us. Is that correct? That's logically incorrect. He is in jail to free the inmates. उनमें से दो चार को वो साथ में लेकर जाएंगे. But just because he is physically present in jail doesn't mean he deserves to be in jail. Yeah, he is in jail because of some crime. Similarly, God, he comes to this samsara. It may look like he is doing activities like a samsari, like he is getting married, he is taking birth, he is managing his family, बच्चे सब कुछ भगवान पालन पोषण कर रहे हैं. But still he is untouched by the contaminations of Maya or material world. That's the fundamental nature of God. But incarnation का मतलब क्या होता है? Incarnation is made up of two words, in and karna. Karna means flesh. Carnivorous, flesh-eating animals. और ये जो concept है incarnation, it is from the Christian idea of how Jesus appeared. So Christianity में there is concept of Holy Trinity. मतलब God, he appears in three forms. So God, he has three aspects. Forms नहीं, aspects बोलना is better. God the Father, God the Son, and Holy Spirit. ऐसा नहीं है कि गॉड तीन फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं. सो देयर आर टू थिंग्स. एक होता है पॉलीथीज्म, जिसमें देयर आर मेनी गॉड्स. एक होता है, आई एम मिसिंग दैट वर्ड, जिसमें सेम गॉड अपीयर्स इन मल्टीपल फॉर्म्स, जैसे राम, कृष्ण, वराह, नरसिम्हा. फॉर अस दैट इज करेक्ट. बट इन एब्राहमिक रिलीजन दे हैव टू ऑलवेज मेंटेन द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड. God is always one. There is no two God. There is no three God. If we say Father is also God, Son is also God, Holy Spirit is also God, and at the same time Father, Son and Holy Spirit are different, it means it is three gods. Polytheism. Then no more Abrahamic religions. So Christianity के पास ये problem आया कि मुझे Father, Son और Spirit के concept को intact रखना है, at the same time one God के concept को disturb नहीं करना है. That's strictly monotheistic Abrahamic religions. कोई चैलेंज क्या आया क्रिश्चियंस के पास? चैलेंज क्रिश्चियंस के पास ये आया
कि अगर मैंने जीसस क्राइस्ट को बोल दिया दैट जीसस क्राइस्ट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ही इज गॉड, जीसस क्राइस्ट इज गॉड, then God has come into this material world and he didn't only come, उसको struggles भी face करने पड़े, persecution face करना पड़ा और finally सूली पर लटका दिया गया. And Jesus Christ experienced the pain. What is the central theme of Christianity? Central theme of Christianity is that Jesus died for our sins. And the idea of repentance is that you must repent. You must not do sin because Jesus died for your sins. और Jesus died for your sins का मतलब क्या है? That जब जीसस को सूली पर लटकाया जा रहा था तो जो पेन जीसस एक्सपीरियंस कर रहे थे, that was real pain as a normal human being would experience. तो Jesus' flesh was normal human's flesh. We don't say that for Ram and Krishna. जब भगवान कृष्ण या भगवान रामचंद्र सीता मैया के लिए वियोग में है, that is out of his internal potency. He is not suffering like a man suffers for his wife. That suffering is not real in the sense that हम जैसे एक्सपीरियंस करते हैं. That suffering is out of internal potency of the Lord. भगवान की आह्लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति के अंदर वो सब हो रही है लीलाएं. But that is not Christian idea. Christian idea is you must repent. तुम्हें माफी मांगनी चाहिए. क्यों? Because Jesus died for your sins. And that pain, अब Jesus died for your sins, तो repentance लोगों में कैसे आएगा? ये बता के कि जो pain है, that pain is real. It is not like Jesus was showing that he is in pain. That pain was real. That flesh was real. हमारे जैसा flesh था Jesus का. And the pain of Jesus was real. So that's one point. So if the pain of Jesus is real, and if Jesus is in normal flesh like humans, then how can he be God? तो उनको अगर मैं बोल दूं कि now he is absolute God, then we'll be in problem. प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? Then we'll be in problem. Then they brought the concept of God the Father who resides in heaven. He is untouched. वो कभी नहीं आते material world में. And then Holy Spirit को define करना थोड़ा मुश्किल है. Holy Spirit is like a divine energy जो कि सब में गॉड के प्रति सरेंडर्ड एटीट्यूड लेकर आती है. सो इट इज नॉट अ फॉर्मलेस थिंग, बट इसको अक्सर होली स्पिरिट को एयर के थ्रू ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है. सो इट इज लाइक वो एनर्जी जो कि सोल्स में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, गॉड के प्रति इंक्लिनेशन लेकर आती है. दैट्स होली स्पिरिट. नाउ यू कैन से अच्छा ये तीनों रिलेटेड कैसे हैं? हाउ कैन गॉड हैव थ्री एस्पेक्ट? क्रिश्चियंस एक्सप्लेन इट इज लाइक थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. They come together to make a triangle. A triangle cannot be made with two sides or one side. So these three aspects, they come together to make God. या जैसे steam, ice and water, all of them are H2O, but still they are different. But in essence they are same. Similarly, God the Father, God the Son and Holy Spirit, they are not different entities. They are one entities, different aspects. And how is it reconciled? Christians कहते हैं अनिर्वचनीय या अचिंत्य. And their way of saying अचिंत्य is it is divine mystery. So हम कहते हैं it is अचिंत्य. So similarly Christians also say this is divine mystery. One cannot explain how this happens, but this happens. ठीक है? Holy Trinity. Of course Muslims इसको accept नहीं करते. वो कहते हैं गॉड का कोई बेटा, पोता, परपोता, चाचा, फूफा, ताऊ, बुआ नहीं है, तो गॉड द सन का कोई कंसेप्ट नहीं है. गॉड ओनली एग्जिस्ट हिमसेल्फ, द फादर. तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज गॉड द सन के बारे में हमें जानना है. गॉड द सन यानी कि जीसस, एंड जीसस केम इन फ्लैश. जीसस केम इन फ्लैश एंड देयरफॉर द वर्ड इनकार्नेशन, दैट गॉड ही केम इन ह्यूमन फ्लैश. And therefore God's experience of this material world is real and painful. And therefore Christians use the word incarnation, और इसीलिए अवतार के लिए incarnation use किया जाता है. But is avatar and incarnation same? क्यों, क्या difference है? Yes. So when God descends from spiritual plane of existence to material plane, he still maintains his divinity. He doesn't compromise his divinity. Whereas when Jesus
In case if he descended from spiritual plane to material plane, he didn't maintain his divinity in the sense that he accepted a material body. समझ में आया? तो हम अवतार को कैसे समझते हैं एंड एब्राहमिक रिलीजन्स इनकारनेशन को कैसे समझते हैं? इसीलिए एब्राहमिक रिलीजन्स अगेंस्ट हैं कि गॉड कैन टेक इनकारनेशन, बिकॉज एज पर देम द मोमेंट गॉड कम्स इन टच विथ मटेरियल वर्ल्ड ही गेट्स कंटामिनेटेड. बट आवर काउंटर क्वेश्चन इज गॉड सो वीक that the moment he comes in touch with material world, क्या ऐसा प्रधानमंत्री हो जो कि जेल में जाते से ही कैदियों को देखकर उसके अंदर भी क्रिमिनल टेंडेंसीज आ जाए? डू यू थिंक सच अ थिंग विल एग्जिस्ट? क्या प्रधानमंत्री का जेल में जाने के बाद क्रिमिनल टेंडेंसीज आ जाएंगे? Similarly, after God comes in touch with material world, he will not be contaminated by material world and material energies. He will remain ever blissful. Satchit Ananda. Any questions on this avatar? नहीं, गॉड का कोई शरीर नहीं है. उस पे आएंगे, वापस आएंगे हम. That in Abrahamic religions God has no body, although it is debated, but majorly they accept God has no body. उनकी. Okay, any questions on this? That is लीला और शिक्षा. तो जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं तो दो चीजें देते हैं भगवान. लीला करते हैं जिससे कि हमारा मन भगवान की ओर आकर्षित हो. लीला क्यों करते हैं और क्या कारण है भगवान की लीला करने का? लीला तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कर ही रहे हैं, सेम लीला मटेरियल वर्ल्ड में आगे करने की क्या आवश्यकता है? ताकि मन हमारा भगवान के प्रति. जीवे कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार. तो जीव को आकर्षित करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आकर लीला करते हैं. भगवान ने लीला ही नहीं की होती तो हम क्या चर्चा करते हैं कि जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण कथा करेंगे, लेकिन कृष्ण कथा करने के लिए कुछ है ही नहीं. भगवान ने कुछ लीला ही नहीं की. तो हम सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि नेह नानास्ति किंचन अयम आत्मा ब्रह्म. कितना चर्चा करोगे इसके ऊपर? थोड़ा सा फिलोसफी में जाएंगे ना तो नींद आ जाएगा सबको. तो इसलिए लीला करते हैं भगवान. लेकिन लीला को लोग चीपली ना ले लें, इसलिए शिक्षा देते हैं अपने स्वरूप को समझने के लिए. क्लियर? नो क्वेश्चंस ऑन दिस? अवतार का समझ में आया? हाँ जी. नहीं, होली स्पिरिट इज गॉड्स एनर्जी, मतलब इट इज पॉजिटिव एनर्जी. बट माया इज, आप कह सकते हो एक तरीके से योग माया, नॉट परमात्मा. कुछ नहीं, इसका कोई सनातन धर्म में पैरेलल नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि यहाँ ये रोल यहाँ ये प्ले कर रहा है. बट एक तरीके से स्पिरिचुअल पोटेंसी योग माया जो जीवों को सरेंडर कराती है. ऐसा ही गाइड करती है होली स्पिरिट. यस, गाइड करती है. हाँ, मतलब कुछ एस्पेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो, बट एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि यहाँ होली स्पिरिट सनातन धर्म में ये है, बिकॉज वी ऑफ कोर्स डोंट बिलीव इन दिस. ओके, हाउ मच टाइम डू वी हैव? ठीक है, 10 मिनट में विल वाइंड अप. सो दिस कंसेप्ट ऑफ अवतार. दूसरा क्या था? कंसेप्ट ऑफ सिन. तो फिलॉसफी में एक टॉपिक है, उसको कहा जाता है थियोडिसी. थियोडिसी का मतलब होता है द प्रॉब्लम ऑफ इविल. और एक बहुत ही सेंट्रल कंसेप्ट है एब्राहमिक रिलीजन्स में, जिसकी वजह से एब्राहमिक रिलीजन हमेशा परेशान रहते हैं. दे आर ऑलवेज सैड एंड ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑलवेज डिस्टर्ब्ड. तो इस प्रॉब्लम ऑफ इविल को समझने की कोशिश करेंगे. यहां से हम कर्म को भी लेकर आएंगे बीच में. तो एज पर एब्राहमिक रिलीजन्स एंड ऑल्सो धार्मिक रिलीजन्स, गॉड के पास 3 बेसिक क्वालिटीज हैं. गॉड इज ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग एंड ऑल मर्सीफुल. ऑल पावरफुल को बोला जाता है ओमनीपोटेंट, ऑल नोइंग को ओमनीसिएंट,
और ऑल मर्सीफुल को omnipotent, omniscient, हाँ, ऑल नोइंग को ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं आप, ऑल मर्सीफुल को ओमनीसिएंट कहा जाता है। ऑल नोइंग की जगह आप बोल सकते हैं ऑल परवेडिंग ऑल्सो, तो ओमनी प्रेजेंट। क्या इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिटी नहीं होगी तो गॉड हो सकता है? नहीं। तो फॉर गॉड टू बी गॉड ही नीड्स टू हैव ऑल दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स एट लीस्ट। यस और नो? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अगर गॉड ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है और ओमनीसिएंट है, एंड स्टिल मिजरी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, यस और नो? सो मिजरी एग्जिस्ट। अगर मिजरी एग्जिस्ट करती है तो एथिस्ट कहते हैं गॉड के पास इन तीनों में से एक नेचर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ 6-year-old गर्ल गेट्स रेप्ड इन अ विलेज, ठीक है, और इस पे एनालिसिस करते हैं। अगर गॉड ओमनीपोटेंट है, गॉड के पास ताकत है उसको रोकने का, गॉड को पता भी है वहां रेप हो रहा है, और गॉड मर्सीफुल है तो चाहते भी ना रेप हो, फिर भी रेप हो गया, इसका मतलब यह तो गॉड इज क्रैक, कुछ गड़बड़ है गॉड के साथ। या फिर इन तीनों में से एक क्वालिटी नहीं है। मान लो या तो ओमनीपोटेंट नहीं है गॉड, मतलब ओमनी प्रेजेंट है, भगवान को पता है वहां रेप हो रहा है, भगवान चाहते भी नहीं है रेप हो, लेकिन बस की नहीं है रोकना, तो या तो ये होगा क्योंकि रेप तो हो रहा है ना, लोग तो मर रहे हैं। या फिर गॉड के पास ताकत है, गॉड को पता भी है, लेकिन गॉड डजंट केयर, गॉड डजंट गिव अ डैम, छोड़ो भाई हम तो मस्ती करते हैं, अपना अंगूर खाएंगे। या फिर गॉड को पता भी है, गॉड चाहते भी हैं, लेकिन गॉड के बस की नहीं है, सॉरी, अच्छा ये तो हो गया, गॉड चाहते भी हैं, गॉड गॉड को ताकत है, गॉड के पास इन्फ्लुएंस है उसे रोकने का, गॉड उसको रोकना भी चाहते हैं, लेकिन गॉड को पता ही नहीं चला हो गया, उनको आज तक से पता चल रहा है, ओ तेरी यहाँ क्या हो गया। इन तीनों में से कोई एक एट्रीब्यूट नहीं है गॉड के पास, और अगर इन तीनों में से कोई एक एट्रीब्यूट नहीं है तो क्या वो गॉड है? तो क्या हम फैलेसी में नहीं फंस गए? इफ गॉड एग्जिस्ट देन मिजरी शुड नॉट एग्जिस्ट, बट मिजरी एग्जिस्ट प्रूव्स दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। समझ आ रहा है? कैन समवन एक्सप्लेन दिस व्हाट आई सेड? एनी साधु? हाँ जी, मानव तो असाधु। आपने बताया कि गॉड, अगर हम कह रहे हैं कि गॉड है तो कोई कोई भी मतलब गॉड है तो उसके पास तीन बेसिक पोटेंशियल होनी चाहिए, तीन तो क्वालिटी होनी चाहिए, ऑल पावरफुल होनी चाहिए, सब सुंदर सबसे शक्तिशाली और कुछ भी करने के लिए शक्ति होनी चाहिए, ऑल नहीं होना चाहिए और मर्सीफुल होना चाहिए। तो अगर कोई भी एक्ट होता है, जैसे आपने रेप का एग्जांपल दिया है, चोरी का एग्जांपल दिया है, तो अगर भगवान ऑल पावर, मतलब अगर भगवान के पास तीनों क्वालिटीज हैं और फिर भी चोरी हो रही है, तो मतलब या तो ये हो सकता है कि भगवान को पता है, भगवान मतलब मर्सीफुल, वो चोरी रुकवा भी सकते हैं किसी का नुकसान के हो, लेकिन भगवान के पास पावर नहीं है, मतलब इसका मतलब वो भगवान नहीं है इस केस में। दूसरे केस में भगवान को मतलब पता नहीं है, उनके पास पावर भी है, वो मर्सीफुल भी है, लेकिन पता ही नहीं है। तीसरे केस में भगवान के पास भगवान मतलब मर्सीफुल नहीं हो, कह रहे हैं तो चोरी कोई बात नहीं। तो तीनों केसेस में ये होता है कि भगवान मतलब अगर तीनों केस लग रहे हैं तो भगवान नहीं है, अगर वो उनके पास पोटेंशियल तो भी। Okay, thank you very much. Anyone else also would like to explain this in their own words? क्या हमने डिस्कस किया इसको? तो इसको हम लीगल एक्ट के तौर पे देख सकते हैं। तो अगर ये हो रहा है तो ये हो कैसे रहा है? इफ गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ये तीनों पोटेंशियल्स हैं, तो ये हो कैसे रहा है? पैरेलली दोनों कैसे चल रहे हैं? या तो गॉड को होना चाहिए या तो इनकी को होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है कि दोनों एक साथ कैसे हो रहे हैं। इसका मतलब गॉड नहीं है, गॉड डजंट एग्जिस्ट बिकॉज़ मिजरी तो एग्जिस्ट। गॉड का अपन को डाउट है बट मिजरी का कोई डाउट नहीं है।
तो इसका मतलब गॉड डजंट, है ना? तो क्या आंसर है इसका? हाउ डू वी आंसर इट? कार्मिक रिएक्शन. बट एब्राहमिक रिलीजन्स में कर्म को कोई कंसेप्ट ही नहीं है. और कर्म का कंसेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि रीइंकार्नेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है. देयर इज नो रीइंकार्नेशन. आपका सिर्फ 2 जन्म होते हैं. ये जन्म हुआ, अगले जन्म में जजमेंट, फिर एटर्नल हेवन या एटर्नल हेल. एंड दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विद एब्राहमिक रिलीजन्स. इसलिए एथिज्म एब्राहमिक रिलीजन्स में इतना ज्यादा बढ़ रहा है. क्यों एथिज्म बढ़ रहा है? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कर्म. एंड कर्म का कंसेप्ट क्यों नहीं है? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन. हम अपने लिए इनकारनेशन यूज कर सकते हैं. आप ये कह सकते हो प्रभु मेरा 26 अगस्त 1998 को इनकारनेशन हुआ. दैट यू कैन से. हम अपने बारे में तो इनकारनेशन कह सकते हैं ना. क्यों? बिकॉज वी केम इन फ्लैश. तो हमारा इनकारनेशन कब हुआ? तो मेरा जैसे 29 फरवरी 2000 को मेरा इनकारनेशन हुआ इस दुनिया में. तो आप सभी कह सकते हैं मेरा इनकारनेशन. कोई गलत, कुछ गलत नहीं है इसमें, क्योंकि भगवान का इनकारनेशन नहीं होता. तो रीइंकार्नेशन का कंसेप्ट नहीं है, और रीइंकार्नेशन कंसेप्ट की वजह से कर्म का कंसेप्ट नहीं है. तो जीव का ओरिजिन क्या है? सोल का ओरिजिन क्या है? तो सोल जो है वो हेवन में है, वहां से मटेरियल वर्ल्ड में आ गया. इसका मतलब सबकी हिस्ट्री सेम है. दे हैव कॉमन हिस्ट्री. सो इफ दे हैव कॉमन हिस्ट्री, हाउ डू दे हैव डिफरेंट प्रेजेंट? फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों हेवन में थे. मेरा जन्म हो गया जेफ बेजोस के बेटे के रूप में, आप हैंडीकैप पैदा हो गए. So why is this discrepancy? Why is this discrepancy? That Abrahamic religions cannot explain. This is test of God. So if this is test of God, how is it that test paper is different? आपको 8th क्लास का एग्जाम लेना था, एक को तो आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दिए, एक को ओलंपियाड का पेपर दे दिया. तो ये टेस्ट पेपर सबके लिए अलग अलग क्यों है? कह रहे नहीं, भगवान इज टेस्टिंग. On the day of judgment, you will be tested based on the actions you did. But sir, मेरे को तो कभी ये टेस्ट पेपर समझने का ही मौका नहीं मिला. So for example, I met a Muslim in train once. तो he said हमारा जजमेंट का डे है. मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है. भगवान ने आपको जो है वो उम्मे जन्म दिया, एक पायस मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया. आप जो है वो दीन कर रहे हैं. एवरी डे यू do 5 टाइम नमाज एंड यू डू रोजा. यू मे also go to क्या कहते हैं उसको, मक्का मदीना. मैं बुत परस्ती करता हूँ ना. आई वर्शिप आइडल्स. और मुझे इतना ज्यादा लड़ना पड़ेगा, समाज से लड़ना पड़ेगा. भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने मुझे मुस्लिम परिवार में जन्म क्यों नहीं दिया? They have no answer to this question because they don't accept the concept of karma. Because the moment you bring karma in this equation, everything fits into place. Then God is udasin from this material world. Updeshta, Anumanta, Bharta, Bhokta, Maheshwaram. परमात्मा के फीचर्स हैं. That Krishna explains in Bhagavad Gita. Updeshta, he sees everything. Overseer, Anumanta, he gives permission. अब बोले अच्छा तो मतलब रेपिस्ट को भी परमिशन भगवान ने दिया. हाँ, रेपिस्ट को भी परमिशन भगवान ने दिया, पर परमिशन देने का मतलब ये नहीं है that he agrees with what he is doing. Yeah, he is happy with what he is doing. But because that is the karma of the other being. उसने भी लास्ट प्रीवियस लाइफ में किया था, तो he has to tolerate it. अब बोले ये तो भगवान बहुत क्रूर है. चलो ठीक है, भगवान क्रूर ना हो, आप रेप करो और भगवान बोले कोई बात नहीं, ओह क्यूटी पाए, कोई बात. Will this be a good thing to do? No. So the judgment should always be there. अगर किसी रेपिस्ट को जज सजाए मौत देता है, is he being cruel? He is just doing what he should be doing. तो वहां तो कोई मना नहीं करता. And if परमात्मा permits based on the previous karma of the jiva, is परमात्मा cruel? परमात्मा actually doesn't interfere. परमात्मा उदासीन है. मतलब परमात्मा हमारी एक्टिविटीज को देखते हैं, बट परमात्मा जीव के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करते. Until unless jiva is ready. If jiva is ready, then as sixth sense, कहता ना मेरे को अंदर से आवाज आ रही है, मुझे नहीं करना चाहिए. वो अंदर की आवाज क्या है? वो परमात्मा की आवाज. That is voice of Paramatma saying don't do it. So the moment you bring karma in the equation, everything fills into place. So the theodicy, the problem of evil, it is a very 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 fundamental problem in Abrahamic religions. और उसके बाद मान लीजिए मेरा जन्म हो गया किसी
मेडागास्कर की किसी ट्राइब में हुला हुला हुम्बा हुम्बा कर रहा हूं मैं पूरी लाइफ, मुझे तो इस्लाम का पता ही नहीं चला कभी। और मान लो मेरा जन्म हुआ, मैं 15 साल जिया, उसके बाद 2 गुटों में भिड़ंत हो गई मेरे को, मैं मर गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? जन्नत तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने इस्लाम तो प्रैक्टिस नहीं किया। मैं जहन्नुम जाऊंगा, और मेरे को तो मौका ही नहीं मिला इस्लाम जानने का। तो अब मैं क्या करूं? समझ रहे हैं आप प्रॉब्लम को? समझ रहे हैं? What is the problem with Abrahamic religions? But what do the Dharmic religions say? They believe in the concept of incarnation, reincarnation. And reincarnation believe करते हैं तो कर्म में believe करते हैं। चारों धार्मिक religions, Hinduism, Sikhism, Buddhism, Jainism, all of them believe in reincarnation and karma. Then everything can be explained. How everything is happening. हम क्यों सुख और दुख भुगतते हैं? Why do we face misery in this material world? Can be explained by our reincarnation and karma. Now it's a different question that rational world जो है वो कर्म को नहीं मानता, because कर्म का कोई rational reason या proof नहीं है। But उसको हम some other day discuss करेंगे, how karma and reincarnation acts and works and how we can prove it. But for now, is it clear to everyone? Any doubts on this? Yes, Manav. reincarnation को हम पुनर्जन्म का मतलब मान सकते हैं, पुनर्जन्म वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अगर हम एक गॉड के लिए यूज करते हैं, गॉड को कह रहे हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, तो बताइए हमें फिर उसमें अपने आप ही गलत होता है। पुनर्जन्म तो नहीं कहते, और इनकारनेशन तो नहीं कहते, इनकारनेशन कहते हैं। और इनकारनेशन को कंसेप्ट ही नहीं है मेरे भाई। हमारे अंदर कंसेप्ट है इनकारनेशन का, उनमें कोई इनकारनेशन कंसेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट जीसस केम इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड। अदर देन दैट, इस्लाम एंड जुडाइज्म में दे विल नॉट इवन थिंक ऑफ इट। इट इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेट ऑफ द रिलीजन के जो पिलर्स है ना, उसके पिलर को ढाने जैसा है। इसलिए दे आर सो मच अगेंस्ट गॉड कमिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज इफ गॉड कम्स इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड तो क्या होगा? भगवान एट्रीब्यूट्स लेंगे। मान लो भगवान आए तो या तो गोरे होंगे, काले होंगे, हमारा कैसा स्किन कलर होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, बालों का कोई रंग होगा, कर्ली हेयर होंगे या स्ट्रेट हेयर होंगे, इस तरीके से ग्रीन आइज होंगी या ब्लू आइज होंगी या ब्राउन आइज होंगी या ब्लैक आइज होंगी। इस तरीके से भगवान ने क्या किए? एट्रीब्यूट्स ले लिए। एंड द मोमेंट ही टेक्स एट्रीब्यूट्स, ही बिकम्स imperfect as per Abrahamic religions. But for us, the attributes beautify the Lord. तो ऐसा नहीं है कि भगवान की अगर ब्राउन आइज हैं तो ब्लू आइज वाले उनसे नफरत करने लगेंगे। It's not like that. समझ में आ गया? Done with this topic. So we discuss the concept of avatar and concept of sin. Yes, book. जो आपने शुरू में बोला कि वो इनकारनेशन में बिलीव नहीं करते, बस लेकिन मानते हैं सिर्फ 2 मतलब 2 बार जन्म होता है। हाँ, मतलब दूसरा बार जन्म नहीं हो रहा है टिपिकली, वो तो जजमेंट हो रहा है। दूसरी बार जजमेंट हो रहा हाँ। है, तो ह्यूमन लाइफ में होगा या फिर उनका ऊपर? नहीं, यही होगा। ह्यूमन मतलब आप जिस बॉडी में हैं उस बॉडी में जीसस के सामने जाएंगे, जीसस पूछेंगे बताओ ये इसका क्या हिसाब किताब है, तो बोलेंगे तो बहुत पाप किए इसमें, तो बुत परस्ती करता था, रोज जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करता था, अरे ठीक है इसको अब जान लूंगे। और ये सामने भी हाँ, जजमेंट जजमेंट वाला डे। ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ टाइम इज लीनियर इन एब्राहमिक रिलीजन्स। तो सृष्टि की शुरुआत हुई है, आप कुछ समय इस भौतिक जगत में रहेंगे, देन जजमेंट डे होगा, उसके बाद कुछ हेवन जाएंगे, हेल जाएंगे, और ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। बट इन बस खत्म। उसके बाद वो उधर हूरों के साथ यार डांस करेंगे, तेल में पकौड़े बनेंगे। ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। टाइम इज नॉट सर्कुलर। यस ब्रो। जजमेंट डे आएगा, वो टाइम पे आएगा, बहुत टाइम में आएगा, उससे पहले जो लोग मर रहे हैं दे स्टे इन स्टेट, या कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। या जैसे कब्र में इस्लाम में जिस स्टेज पे वहीं पे रहते हैं, उसके बाद जजमेंट डे आने के टाइम पर डिसाइड, यस डिसाइड होता है। तब तक दिस शांति से लेटे रहो, अभी आपका आएगा, समय आएगा। बट वी डोंट से रेस्ट इन पीस, वी शुड नॉट से रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस इज एन एब्राहमिक कंसेप्ट, तो हमें रेस्ट इन पीस नहीं बोलना चाहिए। बट इन सनातन धर्म और इन धार्मिक रिलीजन्स द टाइम इज सर्कुलर। सत्य त्रेता द्वापर कली, देन सत्य त्रेता द्वापर कली, ये एक लेवल। उसके बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो रही है, महाविष्णु गर्भ में जा रहे हैं, फिर अगले ब्रह्मा आ रहे हैं, फिर दोबारा से क्रिएशन हो रहा है। सो दिस इज हैपनिंग रिपीटेडली। द कंसेप्ट ऑफ टाइम इज सर्कुलर इन सनातन धर्म। ठीक है,
So last topic before we wind up. There's something called ontology. Ontology का मतलब होता है study of nature of truth. मतलब जो सत्य है या स्पिरिचुअल रियलिटी है उसका नेचर क्या है, उसकी स्टडी को कहा जाता है ऑन्टोलॉजी. सो वी विल ट्राई टू सी एब्राहमिक रिलीजन्स में और धार्मिक रिलीजन्स में कैसे डिफरेंट है ये. एब्राहमिक रिलीजन्स में गॉड इज वन. Ontology मतलब study of the nature of God या study of nature of truth. God is one, strictly monotheistic. God judges our actions, interferes in our life. Interfere मतलब he interferes ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा. He engages in our life. एंड मैं ये नहीं कह सकता दैट गॉड इज पर्सनल या इम्पर्सनल बिकॉज डिफरेंट एब्राहमिक रिलीजन सी डिफरेंटली. एज पर क्रिश्चियनिटी गॉड इज पर्सनल, बट इन एज पर एब्राहमिक एंड जूडो या जूइश ट्रेडिशन के हिसाब से गॉड इज नॉट अ पर्सन. सो आई विल नॉट गिव अ कंक्रीट स्टेटमेंट ऑन दैट. सो लेट्स लीव दैट स्टेटमेंट बिकॉज उसमें स्प्लिट है. हम कॉमन चीज़ों की बात कर रहे हैं. ये नेचर ऑफ गॉड है एज पर एब्राहमिक रिलीजन्स. ठीक है. Also in Abrahamic religion also there is a concept of personal relationship with God, है ना. Forms personal relation with you. प्रसाद आ गया भाई. Okay, but as per धार्मिक religions it is a great split. बुद्धिज्म जैनिज्म में तो गॉड ही नहीं है, they are atheist. सिखिज्म में गॉड इज शून्य. सिखिज्म इज also almost atheist. So हम बात करते अद्वैत में भी गॉड इज वन, जो कुछ नहीं कर सकते, तो इट इज ऑल्सो एथिज्म, ऑलमोस्ट एथिज्म, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, याद है. सो हम धार्मिक रिलीजन्स में वेदांत की बात करेंगे, वैष्णव वेदांत. एक्चुअली हिंदुइज्म में पॉलीथिज्म है ही नहीं. पॉलीथिज्म मानते हैं रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले ये लोग, मतलब फिलोसॉफिकली. हिंदुइज्म में आप षट दर्शन को फॉलो करोगे, यही तो हिंदुइज्म में कर सकते हैं आप, षट दर्शन को फॉलो कर सकते हैं. चार दर्शन तो भगवान की बात ही नहीं करते. अब योग की बात करते हैं, योग में परमात्मा कंसेप्ट है, परमात्मा इज वन. फिर वेदांत आता है, वेदांत में दो ग्रुप्स है, वैष्णव एंड अद्वैत वेदांत. अद्वैत वेदांत में गॉड इज वन, वैष्णव वेदांत में भी गॉड इज वन, रेस्ट ऑल आर देवतास. तो ये मेनी गॉड्स का तो कंसेप्ट है ही नहीं सनातन धर्म में. कहाँ है? It is the misunderstanding of people which gave rise to this many gods concept. But there is nothing like many gods. God is only one. So we are also monotheistic. Of course, then we also accept the fact that God has different aspects. Yeah, God has different forms. But the absolute reality, in essence, is always one. So we are also monotheistic. God judges our actions. Yes, he does, but that is not the sole duty of God. God judges our actions, but also he personally guides us as Paramatma. In Abrahamic religions, on the day of judgment, on judgment day, after judgment day, let's say, no more
जजमेंट। एक बार हो गया तो हो गया, अब उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और ये कितना क्रूल है ना। मान लो आपको एक जन्म मिला, आपने उस जन्म में खूब धर्म की धज्जियां उड़ा दी, उसके बाद भगवान ने आपको हमेशा के लिए नर्क में भेज दिया। मतलब टिल एटर्निटी यू आर गोइंग टू रॉट इन हेल एंड फेस पेन। डू यू थिंक एनी पेरेंट विल डू इट? बच्चा, मान लो पेरेंट्स जो है वो बोल के गए कि आज हम दोनों जा रहे हैं शादी में, तूने घर में कुछ उधम मचाया तो बहुत पिटाई पड़ेगी। अब मान लो बच्चे ने कर दिया, छत ऊपर कर दी, जब फर्श छत नीचे कर दिया, फर्श ऊपर कर दिया घर का, आए तो घर जो है वो ऐसे रखा हुआ है। सो विल द पेरेंट्स बीट द चाइल्ड टिल इटर्निटी? मान लो मार दिया, दो थप्पड़ मार दिया उसको, थोड़ा बेल्ट वेल्ट चला दी, फू फा कर दिया, बट देन खाना खिलाएंगे ना प्यार से उसको, जब मेरा बच्चा है। सो the Abrahamic God is a very cruel God. It's a very cruel conception of God, where after one life it's over. अब तुम कुछ नहीं कर सकते. But the धार्मिक God, he gives chances repeatedly. Yeah, let's say unlimitedly, not just repeatedly, unlimitedly for repentance. मतलब आप माया की तो लाते खाते रहोगे, लेकिन तब तक खाते रहोगे जब तक सुधर ना जाओ, बट कभी ऐसा नहीं होगा दैट यू विल बी एटर्नली सेंट टू हेल, नेवर। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा अपराध कर दो, कहा जाता है वैष्णव अपराध इज मोस्ट डेंजरस। इवन इफ यू डू वैष्णव अपराध, यू विल रॉट इन हेल फॉर मिलियंस ऑफ years, but then after that also God will give you a chance. Okay, now come. So this shows a very merciful aspect of God. But in Abrahamic tradition, the Abrahamic God is very angry always. ठीक है? So this is little discussion. We didn't go in depth because of time crisis. Little discussion on ontology. फिर उसके बाद theology और philosophy. इनका मतलब क्या होता है? Theology का मतलब होता है realizations या religious understanding based on revelations. मतलब वो रिलीजन या वो एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन जो कोरली रेवलेशन पर बेस्ड है। हमने देखा था भगवान ने नोआ को रेवलेशन किया, क्या रेवलेशन किया था? एक नाव बनाओ एंड देन आई विल सेव यू ऑल। इब्राहिम को रेवलेशन किया था, क्या रेवलेशन दिया था? कि तुम जाओ, आई विल गिव यू अ प्रॉमिस्ड लैंड। क्या भगवान ने मोसेस को रेवलेशन किया? क्या? 10 कमांडमेंट्स। फिर भगवान ने जीसस को रेवलेशन किया, भगवान ने मोहम्मद को रेवलेशन किया। तो ये पूरी फिलॉसफी है या पूरा रिलीजन है, ये रेवलेशन पे बेस्ड है। या तो भगवान डायरेक्टली रिवील कर रहे हैं या फिर अपने एंजल्स के माध्यम से रिवील कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सो एंटायर रिलीजन एंड द टीचिंग्स ऑफ रिलीजन आर बेस्ड ऑन रेवलेशन मेड बाय गॉड टू द प्रॉफिट्स। इसलिए कहा जाता है एब्राहमिक थियोलॉजी, because that Abrahamic religion is based on revelation, spiritual revelations. But philosophy का मतलब होता है based on rational, logical and scientific thought. मतलब वो religion या philosophy जो कि based है rational ideas पर, जिसको सोच विचार कर कंक्लूड किया गया। एंड इट इज नॉट कोरली, इट इज नॉट कोर इट इज नॉट इन इट्स कोर बेस्ड ओनली ऑन रेवलेशंस, देयर हैज बीन लॉट ऑफ थॉट गॉन इनटू इट। इसका जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड। सो कुरान इज रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह इज गॉड इन अरेबिक एंड याहवे, which is the Christian God and Jewish God, it is God in Aramaic. There is language called Aramaic language. उसमें उसका word है Yahweh, which is God, and in Arabic he is called Allah. So God, he made revelations to Muhammad, and those revelations are called Quran. The revelations are called Quran. But in Quran, no questions can be asked. There is nothing to dissect. There is nothing to interrogate. There is nothing to be thought upon. Everything should be just followed. That's all. और इस्लामिक ट्रेडिशंस या एब्राहमिक ट्रेडिशंस एज अ होल में कभी भी इस सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी को प्रमोट नहीं किया गया। इट इज नेवर प्रमोटेड।
But that is very different from dharmic traditions. So when Shukdev Goswami is in trance, Srimad Bhagavatam was revealed. But even when Shukdev Goswami is speaking Srimad Bhagavatam from his trance, what is Parikshit Maharaj doing? He is stopping him and asking questions. रुको 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 एक सेकंड जैसे फॉर एग्जांपल छठम स्कंद की शुरुआत कैसे होती है? सुखदेव गोस्वामी ऐसे बोल के आगे बढ़ रहे होते हैं कि जिस प्रकार से अजामिल ने पूरे जीवन पाप किया और फिर भी नाम लेने उसको उद्धार हो गया, ऐसे ही हो रहा था. तो परीक्षित महाराज बोले वेट 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 वेट, व्हाट इज दिस अजामिल? देन स्टार्टेड अजामिल उपाख्यान. जैसे फॉर एग्जांपल 8 कैंटो की शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हुए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने बलि महाराज का भिक्षक के रूप में, भिक्षु के रूप में बलि महाराज के पास गए और उन्हें बंदी बना लिया. और फिर ऐसे हुआ. फिर परीक्षित महाराज बोले रुको 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 रुको, भिक्षु के रूप में गए सुखदेव बलि महाराज के पास भगवान वामन देव एंड स्टिल ट्रैप्ड हिम, स्टिल एनस्लेव्ड हिम, स्टिल उनको बंदी बना लिया. ये कैसे हुआ? So even when he is speaking from trance, the concept of question has not been removed. Still you can ask questions. Even when we say Shukdev Goswami's trance is Srimad Bhagavatam, even then we establish Srimad Bhagavatam by the authority of other Shastras. Even then Srimad Bhagavatam is backed up by other Shastras. ऐसा नहीं, you cannot ask any question. Yeah, it is unquestionable, holier than thou, मतलब सबसे holy, सबसे पवित्र जिस पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता. For example, what is the first Vedanta Sutra? Athato Brahma Jigyasa. Now let's inquire about the Absolute. Then what is the second Vedanta Sutra? Then someone can ask, now let's inquire about the Absolute. What is this Absolute? Then second Vedanta Sutra, Janmadhyasya Yataha. What is Absolute? जिससे कि जन्म, सृष्टि और प्रलय ये तीनों जिससे होती है, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनहाइलेशन, ही इज ब्रह्मन. उनके बारे में क्यूरियोसिटी करो. नाउ लेट्स इंक्वायर अबाउट द ट्रुथ, या एब्सोल्यूट. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. देन व्हाट इज एब्सोल्यूट? जन्माद्यस्यता, जहां जिससे सब कुछ प्रकट होता है. तो जिससे सब कुछ प्रकट होता है, ये एब्सोल्यूट के बारे में मुझे कहां मिलेगा? देन थर्ड वेदांत सूत्र, शास्त्र योनित्वात्. इफ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट, that absolute which is the source of सृष्टि, स्थिति and प्रलय, उनके बारे में कहाँ मिलेगा? शास्त्र योनित्वात्. In the Shastras you will get it. In the womb of Shastras the absolute truth manifests. But then Shastras are contradictory. Some Shastras they establish Narayan as Param Satya. Some Shastras they establish Shiva as Param Satya. There are differences in Shastras. Then Tattu Samanvaya, the fourth Vedanta Sutra, Tattu Samanvaya, there should be Samanvaya, there should be reconciliation of apparently contradictory teachings of Shastras. Tattu Samanvaya, there should be reconciliation. You see how Vedanta Sutra is gradually growing from Adhatu Brahma Jigyasa to Janmadhyasya to Shastra Yonitva to Tattu Samanvaya. इस तरीके से it is logically taking us to the deeper aspects of the absolute truth. And it increases our tendency to ask questions and use our intelligence to accept the absolute. That is not the case with the Abrahamic religions. Buddhi, meat खा के वैसे भी their intelligence has gone dumb. They anyway cannot understand. So that is devotees' basic comparative study between Abrahamic and Dharmic religions. Someday in future, when I get my cab on time and I come on time, we'll have some more detailed analysis. And also when our projector works properly, so we'll have further analysis on this. Thank you very much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.